Hello students, my name is Lalita Berwa, Assistant Professor English. Today we will study The Solitary Reaper. This poem belongs to BA Part 2nd. Solitary Reaper is a poem written by William Wordsworth. We have already seen about William Wordsworth. He was a great romantic poet. This is another poem written by him that is included in the syllabus of BA Part 2nd. Let's begin with the poem. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here, or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overwhelming with the sound. Behold her. It is another lyric, and this is a romantic poem. The poet says, behold her, indicating to someone, a girl, single in the field. She is alone in the field, yon solitary highland lass. He sees a girl when he was passing from highland. A highland girl is all alone in the field. She is reaping and singing by herself. The poet asks the passerbys to stop or gently pass without disturbing the solitary reaper. She is reaping the harvest and binding the sheaves alone, and the notes of her melancholy song are resounding in the deep valley. The poet says, he was walking along with his sister Dorothy Wordsworth, and to her he says, behold her, देखो, single in the field, yon solitary highland lass. दूर एक खेत में, हाईलैंड स्थित एक खेत में एक लड़की है जो अकेली फसल काट रही है. रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो कि अपने आप फसल काटी जा रही है और गीत गुनगुनाती जा रही है. स्टॉप हियर और जेंटली पास, यहाँ रुको और धीरे से गुजरो. अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेली वह है जो फसल काट रही है और उन्हें बांध रही है. एंड सिंग्स ए मेलनकली स्ट्रेन, और उसके साथ जो उसकी टोन है वो कैसी है, मेलनकली, उदासी से भरी हुई है. उसका जो गीत है बहुत ही उदासी से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. ओ लिसन, अपने सिस्टर को इंडिकेट करते हुए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ओ लिसन, अरे सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, जो एक गहरी घाटी है, इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, ये उस गीत की आवाज़ की वजह से पूर्ण रूप से भर गई है और ओवरफ्लो हो रही है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunts among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in inspiring time from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. The song of the girl is sweeter to the poet than that of the nightingale to the tired travelers who take rest in the oasis of the Arabian desert. To the poet, the girl's song seems more thrilling than the cuckoo's song, heard in springtime in the silent seas of the remotest Hebrides. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers in some shady haunts among Arabian sands. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, कोई भी नाइटिंगेल या कुकू बर्ड या बुलबुल इतना मधुर गीत कभी नहीं गा सकती, इतने मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, कि जो थके हुए ट्रैवलर्स आते हैं, यात्रीगण आते हैं, उनके लिए कोई नाइटिंगेल का गीत भी इतना मधुर नहीं हो सकता
जितना कि कवि को उस सॉलिटरी रीपर का गीत अच्छा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, स्वीट प्रतीत हो रहा है। ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट अमोंग अरेबियन सेंट्स, ऐसे ट्रैवलर्स जो किसी अरेबियन डेजर्ट में जाके रुकते हैं, किसी छाया वाले स्थान पे रुकते हैं मरुस्थल में, और अगर कोई कुकू बर्ड उनके लिए गीत गुनगुना रही है तो वो भी उन्हें इतना मधुर प्रतीत नहीं होगा जितना कि इस समय वर्ड्सवर्थ को उस सॉलिटरी रीपर का गीत अच्छा लग रहा है, मधुर लग रहा है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids. A voice so thrilling never was heard. कवि कहता है कि ए वॉइस, इस प्रकार की आवाज़ जो बहुत थ्रिल कर देने वाली है, झकझोर देने वाली है, वो भी कभी नहीं सुनी गई किसी कुक्कू बर्ड के गीत के द्वारा भी, जो कि स्प्रिंग ऋतु में या वसंत ऋतु में अपना गीत गुनगुनाती है, और जिसकी आवाज़, कुक्कू बर्ड्स की आवाज़, जिसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है कि वो दूर स्थित, बहुत दूर स्थित हैबिट्स के जो सीज होते हैं, जो सागर महासागर होते हैं, उनकी जो शांति होती है उसको भी भंग कर देने वाली कुक्कू बर्ड की आवाज़ होती है। उससे ज़्यादा थ्रिलिंग आवाज़ इस टाइम उन्हें किसकी लग रही है? द सॉलिटरी रीपर की। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लोज फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ सॉन्ग थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? The poet asks someone or her sister to tell him the theme of the girl's song, because the language in which she is singing is incomprehensible to him. As there is no one to interpret the song to the poet, he guesses that the melancholy song of the girl might be connected with unhappy incidents or battle of the past. He further guesses that the song might be about some misfortunes of everyday life of sorrow which comes out of the natural course of things. कवि कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है? क्योंकि जो कवि हैं वो हाईलैंड, एक जगह का नाम है ब्रिटेन में, वहाँ पे घूम रहे थे, इसलिए उनके लिए वो भाषा जिसमें वो सॉलिटरी पर गीत गा रही है वो बिल्कुल अननोन है। इस वजह से वो उसकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी टोन उन्हें इतनी मधुर और प्यारी लगती है, उसकी जो ध्वनि है गीत की इतनी प्यारी लगती है कि वो उन्हें थ्रिल कर देती है। वो अपने साथी से पूछते हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा वो क्या गा रही है? भाषा नहीं समझ पाने के कारण वो अंदाज़ लगाते हैं, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, शायद वो जो गीत गुनगुना रही है हो सकता है कि पुराने प्राचीन समय से संबंधित हो, जो कि बहुत ही अनहैप्पी और दुखदायी घटना से संबंधित हो, एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, और बहुत पहले अगर कोई युद्ध हुआ हो उससे रिलेटेड कोई गीत गा रही हो, और इज़ इट सम मोर हम्बली फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा हम्बल या थोड़ा सा आज का ही निजी मामला हो, उसका पर्सनल फैमिली मैटर हो, सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, हो सकता है कि उसके साथ कोई प्राकृतिक दुखद घटना घटी हो, कुछ उसे नुकसान हुआ हो या दुख पहुंचा हो, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, और जो हो सकता है कि वो दोबारा हो, इस वजह से वो गीत गुनगुना रही है। वट एवर द थीम द मेडन sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. Whatever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वट एवर द थीम, उस गीत की चाहे जो भी थीम हो, विषय वस्तु हो, या तो उसकी फैमिलियर मैटर से रिलेटेड हो, या किसी पुराने युद्ध से संबंधित हो, या किसी प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो, जो भी गीत था जो कन्या गा रही थी, एज इफ अ सॉन्ग कुड हैव नो एंड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो सॉन्ग है, वो गीत है, वो कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। Whatever might have been the subject matter of girl's song, it appeared to the poet that she would go on singing forever. The girl
was singing at her work. The poet remained motionless and still while the song was going on. The melody of the song remained enshrined in the heart of the poet long after it has stopped. I saw her singing at her work and over the sickle bending. मैं उसे देखता रहा, her singing at her work. वो अपना कार्य करती जा रही थी और साथ के साथ गीत गुनगुनाती जा रही थी. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, अपने हाशिए को लेके उससे झुकी हुई थी, फसल काटती जा रही थी. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं एकदम स्तब्ध होके बिना हिले डुले वहाँ खड़ा होके उससे सुनता रहा. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा, द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, उसकी ध्वनि मेरे हृदय में बस गई. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और उसके बाद इस ध्वनि को मैंने कभी नहीं सुना. यानी कवि कह रहा है कि जो गीत वो सोलिटरी रिपर गा रही थी वो बहुत ही मधुर प्रतीत होता है, और यहाँ तक कि मैं उस पहाड़ी से आ चुका हूँ, काफ़ी समय भी गुजर चुका है, लेकिन अभी भी वो गीत मेरे हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे कि वो गीत, वो सोलिटरी रिपर इस गीत को अभी भी गुनगुना रही है. धन्यवाद.